न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, स्टॉप ऑन, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल। रानीगंज के कुआडी 3 नंबर क्षेत्र में धसान से स्थानीय दहशत में अचानक तेज आवाज के साथ 30 से 40 फीट जमीन धंसा। नहाने के दौरान एक दिहाड़ी मजदूर की मौत, इलाके में मातम। DSP के अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ भूमि रक्षा समिति के बैनर तले दुर्गापुर से नवान तक 2 युवकों ने निकाली पद यात्रा। बारिश के कारण रेल पार के लोग आतंकित, दुनिया नदी उफान पर आने से चांदा से कुआडी जाने वाली पुल डूबा। शुक्रवार को रानीगंज रोटीबाटी ग्राम पंचायत क्षेत्र के कुआरडी 3 नंबर क्षेत्र फुटबॉल ग्राउंड में धसान से लोग दहशत में हैं। लोगों ने बताया कि अचानक फुटबॉल ग्राउंड में धसान हो गया। यहां करीब 30 से 40 फीट का क्षेत्र धंस गया है। यह गहराई बढ़ती ही जा रही है। अंदर से पानी बहने की आवाज आ रही है। स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और पिकेटिंग कर रही है। धसान क्षेत्र की झाड़ियों से घेर दिया गया है। रोटीबाटी कोलेरी के मैनेजर सोमनाथ मुखोपाध्याय भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि धसान हुई है, इसकी जाँच की जा रही है। राष्ट्रीयकरण से पहले इस क्षेत्र में बहुत जगह से कोयला निकाला गया था। हो सकता है उसके कारण अभी घटना हुई हो। ECL ने इस तरफ कोई भी खनन कार्य नहीं किया है। बहरहाल इस घटना के कारण गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। लोग घटना के बाद घरों से बाहर रह रहे हैं। আমাদের ওখানে 6টার সময় ইয়ে হয়ে গেছে, বসে গেছে, তো আমরা কোথায় থাকবো, আমাদের কিছু নেই, ব্যবস্থা করো। সেটা নিয়ে কি ভয় লাগছে? হ্যাঁ ভয় লাগছে, ভয় পাচ্ছে, ছোট ছোট বাচ্চা আছে আর আছে, আমরা কোথায় যাব, আমরা গরিব মানুষ। আমাদের এখানে সকালে দুজন মুখ ধুতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখে একটা শব্দ হতে উপর দিকে তাকাচ্ছে, তাকানোর পর দেখা যাচ্ছে যে নিচে একটা ধস নেমে গেছে। ধস নামতে নামতে এতটা গর্ত হয়ে পড়লো যে আমাদের এখানকার মানুষজন গিয়ে দেখে যে অনেক শব্দ হচ্ছে আর জল মানে অনেক গর্ত হয়ে গেছে আর জল প্রচণ্ড একটা শব্দ হচ্ছে, আওয়াজ হচ্ছে। তারপরে মানুষজন ভয়ে আমরা তো সব এখন থেকেই বলছি জিনিসপত্র বাগাবো নাকি, কী হবে কি বোঝা মুশকিল। এখন আমাদের এই বাচ্চারা চলে যাচ্ছে, গরু ছাগল চলে যাচ্ছে, তার জন্য আমরা পুলিশকেও দেখেছি, আমাদের এখানে নেতারা এসেছিল, দেখে গেছে। এবার আমাদের একটু ব্যবস্থা না করলে, এই তো 5 তারিখে ফুটবল খেলা গেল, এই 5 তারিখে এখানে একটা ওয়ানডে খেলা, সেদিন যদি হঠাৎ করে এটা হতো তাহলে কি বড় বিপদ হতো বলো। এখন তো বোঝা যাচ্ছে না গর্ত হয়েছে, কিন্তু ভিতর থেকে আওয়াজ হচ্ছে, জলের আওয়াজ হচ্ছে, তারপরে এমনি খুব মানে বাজে ধরনেরই আওয়াজ হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন হেভি কিছু হয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ অবধি না ECL সার্ভেয়ার বা ম্যানেজার আসবে, তারা যতক্ষণ কিছু না দেখবে তারা বলতে পারবে না। এগুলোর নিচে আমরা এখন যে আন্দাজ করছি, হয়তো ন্যাশনালাইজেশনের আগে এখানে অনেক মাইন্স চলতো, প্রাইভেট মাইন্স, তারা এখানে চালিয়েছে শ্যালো ডেপথে উইদাউট কোনো গাইডলাইন্স, DGMS-এর কিছু গাইডলাইন্স তারা চালিয়েছে। সেইগুলোর জন্য কি হচ্ছে, আমাদের অনেক জায়গাতে এরকম প্রবলেম হচ্ছে, তো সেগুলো যখন প্রবলেম হচ্ছে আমরা সেগুলোকে তখন সেভাবে স্টেপ নিচ্ছি সেগুলো। তো এটাকে আমরা এখন টেম্পোরারি ফেন্সিং করব আর তারপরে এটাকে পুরো ফিলিং করব মেশিন দিয়ে। স্যার কি দেখলেন, কি ধরনের ভিতরে হচ্ছে আওয়াজ? ভেতরে কোনো ওয়ার্কিং আছে, হয়তো আগেকার চালানো ন্যাশনালাইজেশন আগেকার চালানো কোনো ওয়ার্কিং আছে, সেই ওয়ার্কিং হয়তো শ্যালো ডেপথে কভারে চালানো হয়েছে, সেইগুলো এখন জলের ইয়েতে হচ্ছে, সেগুলো মাটিগুলো ধসছে, আস্তে আস্তে টানছে, তার জন্য উপর থেকে সাবসাইড করছে। এটা কি বলছেন যে ECL কয়লা কেটে গেছে? ECL নয়, ECL এর আগে যখন ন্যাশনালাইজেশন আগে যখন প্রাইভেট মাইন্স চলতো তখনকার ঘটনা এগুলো। लावदोहा से बहने वाली कुनूर नदी की सफाई एवं उसके अस्तित्व की रक्षा को लेकर कुनूर नदी बचाओ समिति ने आवाज उठाई है। गुरुवार को कमेटी की ओर से सभा की गई, जहां पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी भी पहुंचे एवं नदी की सफाई की मांग के पक्ष में आवाज उठाई। कुनूर नदी के पानी से आसपास इलाके के किसान खेती करते हैं, लेकिन उनमें निजी गैस संस्थानों का गंदा पानी बहाया जाता है, जिससे नदी का जल प्रदूषित हो गया है। वहीं नदी में गंदगी जम गया है, जिससे नदी की गहराई भी कम हो गई है। थोड़ा बारिश होने पर नदी का पानी ऊपर से बहने लगता है। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि कुनूर पर इलाके की बड़ी आबादी निर्भर है, लेकिन आज नदी का अस्तित्व खतरे में है। प्रशासन को नदी बचाने के लिए कदम उठाना चाहिए, अन्यथा हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। কোথায় কয়লা থেকে টাকা রোজগার করা যাবে, কোথায় লোহা থেকে টাকা রোজগার করবে, সেসবের কাজে বেশি ব্যস্ত। এই কাজগুলো তাদের কাছে খুব গৌণ, এই কাজগুলো কোনো গুরুত্ব নেই তাদের কাছে। চাষি মরছে মরুক না, তাদের কি গেল হলো।
এবং বলুন বেসরকারি গ্যাস উত্তোলক সংস্থা এসআর দীর্ঘদিন ধরেই এই কুনুরের জলে তাদের যে বজ্র মিশ্রিত নোংরা জল ফেলছে, আর সেই জন্যই কিন্তু বারবারই একদম একদম একদম। এবং আগে যেটা ছিল আজ থেকে 2 বছর আগেও যেটা ছিল, যে এই যে জল যেটা পলিউটেড ওয়াটার, সেটা এটা ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে অন্য এলাকায় কোল বিয়ারিং ল্যান্ডে যেখানে চাষবাস হয় না সেখানে ফেলে আসার একটা ব্যবস্থা ছিল। তার জন্য কিছু হয়তো তাদের খরচ হতো, ঠিক আছে, কিন্তু জমিটা তো বেঁচে যেত। 2 বছর ধরে সব বন্ধ, সব সিস্টেম বন্ধ। এখন ওই যে ট্যাঙ্কারে করে জল পাঠাবার যে পয়সা ছিল, সেই পয়সা নেতাদের পকেটে চলে যাচ্ছে। এখন আর ওইসব করার দরকার নেই। পয়সা না খরচা করে যখন ওদের কাজ হয়ে যাচ্ছে, কেন খরচা করবে? এর পেছনে কি কারো মদত? না, বলুন না, যারা প্রশাসনে আছে তাদের মতো, যারা সরকার পক্ষ, এটা দেখার দায়িত্ব কাদের? এটা আজ আমাদের এরা যে কুনুর নদী বাঁচাও সংগ্রাম কমিটি তৈরি করতে হলো কেন? এটা তো যারা শাসক দলের আছে তাদের তো দেখা উচিত ছিল, তাদের নিজের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কিন্তু আজকে যেটা খবর পেলাম, বিজেপি নাকি কালিকাপুর সংলগ্ন জায়গায় কুনুর নদীতে যে আছে তাতে এসআরের জল পড়ে চাষযোগ্য জমি নষ্ট হচ্ছে। আমরা অনেক দিন ধরে এসআরকে বলে আসছি যাতে এসআরের ওই জলটা, যেটা মাছের পক্ষে ক্ষতিকারক, তাতে যদি না ফেলে, তার জন্য বলেছি আগামী দিনে আমরা এসআরকে চিঠি দিয়ে জানাবো, যদি না শুনে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। আজকে বিজেপি যেটা করছে, নাটক করছে। হ্যাঁ, বিজেপির এই এলাকার মানুষের কাছে কিছুই নেই, এই এলাকার মানুষের গ্রহণযোগ্যতা নেই বিজেপির, তাই মানুষকে নাটক করে কাছে পেতে চাইছে। नहाने के दौरान एक दिहाड़ी मजदूर की तालाब के पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना शुक्रवार दोपहर आसनसोल के वार्ड नंबर 15 के मौजूड़ी दिनेश पल्ली में हुई। मृतक की पहचान उत्तर थाना क्षेत्र के शीतला रुईदास पाड़ा निवासी 35 वर्षीय भुवन बावरी के रूप में की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार भुवन शुक्रवार को कोई काम न होने के कारण घर पर ही था। दोपहर बाद घर के पास मौजूद दिनेश पल्ली के तालाब में नहाने गया। उसी दौरान तालाब में डूब गया। इलाके के लोगों से सूचना मिलने पर पुलिस, स्वजन और पार्षद श्याम सोरेन आए। दोपहर में तालाब से भुवन को निकाला गया। पुलिस उसे आसनसोल जिला अस्पताल ले गई और डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। কয়েক ঘন্টা আগে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে আমাদেরই দেশপল্লীর ছেলে, খুব অল্প বয়সী ছিল, 30 বছর বয়স, ভুবন বাউরি ডুবে মারা গেলেন। আমাদের এই মজুরি দিনেশপল্লী স্নান করছিল। না, আরও আশেপাশে ওনার বন্ধুরা ছিল, সবাই চান করছিল, দিয়ে হয়তো জলের কিছু ফেসে গিয়ে ডুবে মরে গেল। এখনও আমরা রিকভারি করলাম। থানার পুলিশ বড়বাবু নিজে সাথে দেখলেন, বডিটাকে বার করলেন এবং সেই বডিটাকে আপাতত পোস্টমর্টমের জন্য হসপিটাল নিয়ে যাওয়া। 30 থেকে 35 আনুমানিক। इस त्योहारों के मौसम में अपने पैरों को बनाए सुंदर और आकर्षक स्ट्रॉप ऑन के स्टाइलिश जूतों, कैनवास और चप्पलों के साथ मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक। तो देर ना करें, चले आए स्टॉप ऑन के एक्सक्लूसिव शोरूम में, SD इंटरप्राइज नियर राह लेन, GT रोड, आसनसोल। मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट TV और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर। हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, आसनसोल। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार,
साथ ही आप पाएंगे ग्रीन नाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। दुर्गापुर के दो युवकों ने दुर्गापुर की भूमि रक्षा समिति के बैनर तले दुर्गापुर से नवान की पद यात्रा शुरू की। उनकी मांग है कि उन्हें रोजगार दिया जाए। उन लोगों का कहना है कि ना नौकरी है, ना जमीन के कागजात है। हर मामले में दुर्गापुर के भूमिपुत्र वंचित हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को बार बार कहने पर भी कुछ नहीं किया गया। इसलिए समिति के 2 सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर गोपाल मठ से नवान तक पद यात्रा पर निकले हैं। আমাদের দাবি, এতদিন ধরে গরিব মানুষগুলো এখানে বসে আছে, তারা এখন কোথায় যাবে? তো আমাদের দাদারা এখন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন নিয়ে যাচ্ছে যে ওদের যাতে মানে সাকসেস হয়, দাদারা যেটা ভালো বুঝবে করবে। आसनसोल नगर निगम के कांग्रेस पार्षद SM मुस्तफा द्वारा आज ओके रोड इलाके में एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके जरिए उन्होंने यहां के दुकानदारों को अपनी दुकानों को सड़कों तक न लाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कई दुकानदार अपनी दुकानों के जरिए सड़कों पर अतिक्रमण कर लेते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी असुविधा होती है। उन्होंने दुकानदारों को इस तरह से अतिक्रमण करने से बचने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि आज वह इन दुकानदारों को यह बताने आए हैं कि इस तरह से अतिक्रमण करना अनुचित है, लेकिन कल को जब आसनसोल नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी तो कई दुकानदारों को नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि यहाँ के दुकानदार अतिक्रमण ना करे। इसके साथ ही उन्होंने मीट बेचने वाले दुकानदारों को खुले में मीट न बेचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस रास्ते से कई बड़े बड़े अधिकारी अफसर गुजरते हैं, उनके सामने अगर इस तरह खुले में मीट बेचा जाएगा तो वह काफी अशोभनीय है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी एतराज जताया कि ओके रोड सहित रेल पार के विभिन्न इलाकों में नशे का कारोबार काफी बढ़ गया है। यहाँ के युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं। इस विषय पर भी उन्होंने अपना ऐतराज जताया और कहा कि रेल पार इलाके से कई बड़े बड़े अधिकारी निकलते हैं, लेकिन आज का युवा खुद को नशे का आदी बना रहा है। इससे बचने की आवश्यकता है और इसका एकमात्र उपाय यह है कि जो नशे का कारोबार करते हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और यहाँ का युवा शिक्षा में खुद को नियोजित करे। इसके अलावा पार्षद ने जिस एक और विषय के बारे में लोगों को जागरूक किया वह थी लॉटरी की बिक्री। उन्होंने कहा कि यह बड़े शर्म की बात है कि आज लोग अपनी किस्मत बदलने के लिए तदबीर से ज्यादा तकदीर पर भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अपनी जिंदगी को बदलना है तो अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, न कि लॉटरी पर। लॉटरी की वजह से कई घर बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने लोगों से लॉटरी की लत से बचने का अनुरोध किया। पार्षद ने सभी से अनुरोध किया कि इस इलाके के विकास के लिए सभी को तत्पर होना होगा, सभी को एकजुट होकर काम करना होगा, तब कहीं जाकर इस इलाके का विकास होगा। आप लोग भी महसूस करते हैं आते जाते हुए रास्ता जिस तरीके से जाम है। आप बिजनेस करिए, बिजनेस करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, मगर आप दुकान को जिस तरीके से बढ़ा करके रोड पेपर में ला दिए हैं, ये समझ जाइए बर्दाश्त से ही बाहर है। चूंकि आज हम लोग आपका बीच में आए हैं बताने के लिए, हम लोग आपका लड़का आपका बेटा होकर के बताने के लिए आए हैं। अगर कल कारपोरेशन स्टेप उठाएगी, अगर कारपोरेशन कोई कदम उठाएगा तो उसमें गेहूं के साथ जो भी पिसा जाएगा, कुछ अच्छे लोगों का भी दुकान जो सामने में आता है जो बड़ा हुआ है उसके साथ कार्रवाई हो सकता है। हम लोग देख रहे हैं हमारे और आपके नौजवान जिस तरीके से स्मैक खा रहा है, बेच भी रहा है, बहुत दर्दनाक बात है। जो बच्चा को पढ़ लिख कर करके अफसरान बनता, जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ करके आज SDO हुए, असिस्टेंट SDO हुए, BDO हुए, आपका इलेक्ट्रिक असिस्टेंट इंजीनियर हुए, मजिस्ट्रेट हुए, हम लोग लिए फख्र की बात है कि इसी सरजमीन ओके रोड में हमारे बहुत सारे BDO हैं। तो जो बच्चा को कलम पकड़ना चाहिए आज वो स्मैक एटेंडेंट खा रहा है। ये कसूरवार उनके घर वाले भी है, हम लोग भी है, हम सब है। तो इसलिए हम लोगों ने आज ये बेड़ा उठाया है कि जो लोग स्मैक खा रहे हैं या बेच रहे हैं उनके साथ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। श्री बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाले मनलुभावन सिल्क और ताँत साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा और साथ में फैशनेबल सलवार सूट। पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, अपोजिट सुभाष सिनेमा, जीटी रोड, आसनसोल। मैं कौन हूँ ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। रेडी? नाम तो सुना होगा। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. गुरुवार रात से हो रही बारिश के कारण शुक्रवार को नूनिया नदी उफान पर आ गई है। वहीं बारिश के कारण रेल पार के लोग भी आतंकित है। शुक्रवार को आसनसोल के चांदा से कुआरडी जाने वाली सड़क पानी में डूब जाने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। दोनों तरफ से आने जाने वालों का संपर्क टूट चुका है। कोई इधर से उधर नहीं जा पा रहा है। यह नूनिया नदी पर बना ब्रिज है, पानी में समा जाने से यह रास्ता बंद हो चुका है। लोगों का कहना है कि अब उन्हें 5 से 6 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ रहा है। इससे हम लोगों को काफी परेशानी और बढ़ गई है। साथ ही आरोप लगाया कि कई बार प्रशासन को इस बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन आसनसोल का जितना कचरा है वह यहीं पर आकर जमा हो जाता है, जिससे जल निकासी नहीं हो पाती है और ब्रिज के ऊपर पानी आ जाता है। আমরা যাতায়াত করি এখান থেকে প্রায়, কিন্তু এখন রাস্তা ব্লক হয়ে গেছে, যার জন্য আমরা যাতায়াত করতে পারছি না। এটার জন্য আমাদেরকে প্রায় মোটামুটি 4 থেকে 5 কিলোমিটার ঘুরে যেতে হবে। হ্যাঁ, এটার একটা ব্যবস্থা কিছু করা যায়। কি দেখছেন এখানে? পুরো জলে পুরো ভরে গেছে ব্রিজে। হ্যাঁ, যাওয়া যাবে না, কাঁচড়া পুরো জমে গেছে, তার জন্য জল যাতায়াত হচ্ছে না। তো সেটার জন্যই বলবো আর কি, যে এটা কিছু ব্যবস্থা করা যায়।
बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गोत्सव की तैयारी शिल्पांचल में भी जोर शोर से चल रही है। विभिन्न पूजा आयोजकों द्वारा भव्य पूजा आयोजन की तैयारी की जा रही है। त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से सफल हो सके इसलिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस भी सक्रियता से कार्य कर रही है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस की टीम पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को आसनसोल के विभिन्न मंडपों में पहुंची। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने मंडप का निरीक्षण कर प्रवेश और निकास द्वार और भीड़ प्रबंधन के बारे में जानकारी ली ताकि पूजा के दौरान आने वाले दर्शनार्थियों को कोई कठिनाई न हो। इस टीम का नेतृत्व डीसी ट्रैफिक आनंद राय, डीसी सेंट्रल डॉक्टर कुलदीप एसएस ने किया। टीम ने धोमेमैन, कोर्ट रोड, अपकार गार्डन आदि पूजा स्थलों का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि पिछले वर्ष धोमेमैन में दुर्गा पूजा के दौरान काफी भीड़ उमड़ी थी, जिसके कारण श्रद्धालुओं को परेशानी हुई थी। इस बार वहां ट्विन टावर आधारित पंडाल बनाया जा रहा है, इसलिए पुलिस पहले से ही सतर्कता बरत रही है। क्राउड सार्कुलेशन যাতে ঠিকঠাক হয়, কোনো প্রবলেম না হয়, ট্রাফিক কনজেশন না হয় সেজন্য পুজো কমিটি থেকে কি নির্দেশ দিলেন আপনারা? আমাদের এন্ডের থেকে যেটা যেটা মনে হলো ঠিকঠাক করতে হবে, যেটা করণীয় সেটা বললাম। তাও কি মানে দেখলেন যে যেরকম যেখানে ব্যারিকেড দিতে হবে, কোথায় এন্ট্রি কেমন হবে, এক্সিট কেমন হবে, কোন দিক দিয়ে ঢুকবে, কোন দিক দিয়ে বেরোবে, সেফটি সিকিউরিটি মেজার্স নিয়ে বললাম। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, बीएन घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल,